لاہور کے ایک معروف ہوٹل میں پاکستان کے معروف ادیب اور مصنف داؤد اعظم کی نئی کتاب آنکھوں کی زبان کی تقریب رونمائی اور افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا، جس میں معروف صحافی حسن نثار، مسلم لیگ کاف لاہور کے صدر میاں وحید احمد نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ تقریب میں شائع مصنف اور صحافی حضرات کی بڑی تعداد میں شرکت۔ رپورٹ کر رہے ہیں عاصم بدر۔ معروف ادیب اور مصنف داؤد اعظم کی نئی کتاب آنکھوں کی زبان کی تقریب رونمائی کے لیے لاہور میں ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں معروف صحافی حسن نثار، مسلم لیگ کاف لاہور کے صدر میاں وحید نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ پاکستان بھر سے نامور لکھاریوں سمیت سیاسی، سماجی اور مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کی بڑی تعداد میں شرکت۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ حاجرہ فرق شیخ نے نعت رسول مقبول کا نذرانہ بھی پیش کیا۔ اس کے علاوہ تقریب میں ان کا حلقہ احباب، دوست اور خاص طور پر بڑی بیٹی پروفیسر حمیرہ عمر، بہن زاہدہ وسیم نے بھی خصوصی شرکت کی۔ دیگر مہمانان گرامی میں سعادت سعید، نجیب اسلم خان، آصف علی بادل، رانا نسیم اختر، رازا نور محمد قصوری شامل تھے۔ اس موقع پر مہمانان گرامی کا کہنا تھا کہ اس دور حیات میں داؤد اعظم کی شاعری ہر عمر کے افراد پڑھ کر محفوظ ہوتے ہیں۔ شاعرہ وفا اظہر، شاعرہ ربینہ شاہین، سمینہ حیدر نے داؤد اعظم کے عزم کو سراہا اور صحت و سلامتی کی دعائیں دی۔ ان کی نظمیں نہ صرف استاد غلام علی بلکہ ریشمہ جی سمیت اس دور کے تمام گلوکاروں نے ریکارڈ کروائیں۔ احسان بٹالوی صاحب کا کہنا تھا کہ میں 5 کتابوں کا مصنف ہوں، مگر جتنی خوشی مجھے آج داؤد اعظم کی اس کتاب کی ہے شاید مجھے اپنی کسی تصنیف پر نہیں ہوئی۔ تقریب کے اختتام پر داؤد اعظم نے مہمان کے ساتھ روزہ افطار کیا اور مہمانوں کا شکریہ بھی ادا کیا۔ تقریب کی میزبانی کے فرائض حاجرہ فرق شیخ نے انجام دیے۔ اب خبر شامل کرتے ہیں لالا موسیٰ شہر سے۔ تحصیل رپورٹر نوید احمد کی رپورٹ کے مطابق درباری محلہ میں مسیح برادری کا اکٹھ ہوا اور انہوں نے MNA چودھری نصیر عباس سدھو کی قیادت میں مسلم لیگ نون میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ سینیٹ یونین کونسل میانہ چک امیدوار چیئرمین محمد رمضان بٹ نے مسیح برادری کو مسلم لیگ نون میں شامل ہونے پر خوش آمدید کہا اور انہیں بتایا آپ اپنے مسائل بتائیں، MNA چودھری نصیر عباس سدھو آپ کے ساتھ ہیں اور وہ آپ کے تمام مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کریں گے۔ لاہور کے سرکاری اسپتالوں میں پرائیویٹ مافیا نے پنجے گاڑ لیے۔ اربوں کے فنڈز کی فراہمی کے باوجود مریض پھر بھی خوار۔ لیبارٹری کے ٹیکنیشینز مریضوں کو ٹیسٹ کروانے کے لیے پرائیویٹ لیبارٹریز میں بھجوانے لگے۔ اس سلسلے کی ایک کڑی کا واقعہ لاہور گنگا رام اسپتال میں پیش آیا۔ کروڑوں روپے مالیت سے لگائی گئی نئی سٹی سکین مشین نصب ہونے کے باوجود فنکشنل نہ ہو سکی۔ مریضوں کی بڑی تعداد سٹی سکین کروانے کے انتظار میں دن گن رہی ہے، جبکہ انتظامیہ کی طرف سے مکمل خاموشی اختیار کی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق نئی سٹی سکین مشین 6 ماہ پہلے اسپتال میں نصب ہوئی تھی، جبکہ 2 ماہ قبل اسے فنکشنل بھی کر دیا گیا تھا، مگر وہ کون سے عوامل ہیں جس کی وجہ سے مشین کو استعمال نہیں کیا جا رہا، جس کے باعث مریض پرائیویٹ لیبارٹریز سے سٹی سکین کروانے پر مجبور ہیں۔ متاثرہ مریضوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے اسپتال انتظامیہ کے خلاف فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ لاہور کے مشہور و معروف کاسموپولیٹن کلب باغ جناب میں ایک روح پرور اور پرکیف افطار عشائیے کا اہتمام کیا گیا، جس کے میزبان محترم شاہد محمود مغل تھے۔ شاہد محمود مغل نہ صرف لاہور چیمبر آف کامرس میں ماربل انڈسٹری کمیٹی کے کنوینر ہیں، بلکہ LRA لیک سٹی کے صدر کی حیثیت سے بھی کاروباری دنیا میں ایک معتبر مقام رکھتے ہیں۔ اس بابرکت محفل کو بزم امجد کے عنوان سے منسوب کیا گیا ہے، جس نے اس تقریب کو ایک ادبی، روحانی اور سماجی ہم آہنگی کا حسین امتزاج بنا دیا۔ محفل میں شریک ہونے والی ممتاز شخصیات میں اون نیوز کے چیئرمین رانا راشد ڈیال، سینئر سیاستدان میاں محمد ایوب، دبئی کے معروف شاعر امجد اقبال امجد، عدنان چودھری، ممتاز کاروباری شخصیات بلال خان، گلوکار پیٹر بھٹی اور عمران رضا شامل تھے۔ مشہور معروف گلوکارہ ہما عمران کی موجودگی نے اس بزم کو مزید رنگین بنا دیا، جبکہ امور فاؤنڈیشن کے مینیجر ڈاکٹر مدیحہ بطول، نازش خان، مس تہذیب دعا خان، رملہ چودھری اور مس سدرا نے بھی تقریب کی رونق کو دوبالا کیا۔ افطار کے بعد لذیذ اور پرتکلف عشائیے کا اہتمام کیا گیا، جس میں مہمانوں نے نہ صرف مزیدار کھانوں سے لطف اٹھایا بلکہ روحانی اور علمی گفتگو نے اس شب کو یادگار بنا دیا۔
मखसूम बीबी फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम रमज़ान मुबारक के दौरान मुसाफिर इफ्तारी प्रोग्राम जारी रहा, जिसके तहत मुसाफिरों, ठेले वालों और भिखारियों में सामान इफ्तारी तकसीम किया गया, जिसमें समोसा, खजूर, जूस और मिनरल वाटर शामिल था। इस हवाले से मरकज़ी चेयरमैन मुमताज़ शख्सियत समाजी रहनुमा सफ़ीर इंसानियत सपूत पाकिस्तान मोहम्मद महबूब राजपूत ने अपने पैगाम में कहा कि सफ़र के दौरान मुसाफिरों को हिफ्ज़ान सेहत के ऐन मुताबिक इफ्तारी का सामान फराहम किया जा रहा है, क्योंकि देखा गया है कि इफ्तारी के वक्त जो लोग सामान इफ्तारी दुकानदार या ठेले वाले फरोख्त कर रहे होते हैं वो इंतहाई नाक़िस मटीरियल से तैयार किया जाता है और इसकी तैयारी में सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता। मरकज़ी चेयरमैन मखसूम बीबी फाउंडेशन मोहम्मद महबूब राजपूत ने फाउंडेशन के रज़ाकारों को अपने पैगाम में कहा है कि मुसाफिर इफ्तारी प्रोग्राम के दौरान किसी मुसाफिर से ये ना पूछा जाए कि आपका रोज़ा है कि नहीं, सबको इफ्तारी का सामान फराहम करें। अगर कोई मुसाफिर और सामान इफ्तारी मांगे तो इसको फौरी तौर पर फराहम करें। सपूत पाकिस्तान सफ़ीर इंसानियत मोहम्मद महबूब राजपूत ने बताया कि ईद उल फितर पर भी मुस्तहिक अफराद, बूढ़ी माओं, बुजुर्गों और बच्चों में ईद गिफ्ट और मिठाई तकसीम की जाएगी। मरकज़ी चेयरमैन मखसूम बीबी फाउंडेशन मोहम्मद महबूब राजपूत ने कहा है कि अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी मेरे साथ मिलकर काम करें तो हम कई चेहरों की मायूसी दूर करके इस पर खुशियाँ बिखेर सकते हैं। खबर शामिल करते हैं लाहौर के सूबाई हल्का PP 147 हमजा शहबाज के हल्के से, जहां गुज़िश्ता रोज़ सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून यूथ विंग PP 147 और मेंबर अमन कमेटी मिस्री शाह एडवोकेट सैयद मेमन सबाहत हमदानी के रिहाइशगाह पर थाना मिस्री शाह पुलिस ने धावा बोल दिया। हमसायों के घर रेड के लिए सैयद मेमन सबाहत हमदानी के रिहाइशगाह का दरवाज़ा तोड़कर सब इंस्पेक्टर एहसान और अदील अपने हमरा दीगर 2 पुलिस मुलाजमों नसीर और असगर के साथ जबरदस्ती दाखिल हो गए। पुलिस ने छत का भी ताला तोड़ दिया। पुलिस की गुंडागर्दी पर वकला ने एहतजाज किया है और CCPO लाहौर को वाक़े का नोटिस लेकर गुंडागर्दी करने वाले पुलिस एहलकारों के सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है, जबकि SHO मिस्री शाह को भी अंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दे दी गई है। अब खबर शामिल करते हैं सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर से, जहां दुबई से आए सलाहुद्दीन भट्ट ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग के रहनुमाओं और दोस्त अहबाब के एजाज़ में इफ्तार डिनर का एहतमाम किया। सलाहुद्दीन भट्ट की जानब से दिए गए इफ्तार डिनर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग पंजाब के कायम मकाम सदर फेडमिक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चौधरी यासर इरफात, पाकिस्तान मुस्लिम लीग लाहौर के जनरल सेक्रेटरी नदीम पहलवान, इरफान भट्ट, नवीद पहलवान, अली रजा समेत दीगर दोस्त अहबाब ने शिरकत की। इस मौका पर खुशगवार माहौल में तमाम दोस्तों में पुरानी यादें ताज़ा की गई। मियां मोहसिन की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के दारुल-हुकूमत अर-रियाद में मरूफ समाजी शख्सियत मुश्ताक बलोच की जानब से पाक ओवरसीज़ कम्यूनिटी के एजाज़ में इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें कम्यूनिटी अफराद ने शिरकत की। तकरीब के माने खसूसी शरीफ बलोच ने मुश्ताक बलोच का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि रमज़ान मुबारक का महीना खुद एहतसाबी का दर्स देता है। रमज़ान करीम फैज़ बरक़ात समेटने का महीना है। रोज़ा सिर्फ जिस्मानी मुशक्क़त नहीं बल्कि ये दिल की पाकीज़गी, रूहानी तरबियत और कर्ब इलाही के हसूल का ज़रिया है। तकरीब से खिताब करते हुए मेज़बान मुश्ताक बलोच का कहना था कि रमज़ान मुबारक रहमतों बरकतों का सैलाब है। हमें अपनी आखिरत संवारने के साथ साथ अल्लाह सुब्हान तआला की खुशनुदी हासिल करने का सुनहरी मौका फराहम करता है। तकरीब के आखिर में अरशद महमूद तबस्सुम, मलिक नासिम अली, करीबुल्लाह, हदायतुल्लाह, शरीफ बलोच, अली शाहनवाज खान, नसीम खान की हौसला अफजाई के लिए इन्हें इजाज़ी सर्टिफिकेट भी दिए गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं मन्नसारा। रुक करते हैं खबरों का। दीपालपुर से रिपोर्ट कर रहे मियां सजाद हुसैन बोदला। दीपालपुर के इलाके में सानहा जाफर एक्सप्रेस में शहीद होने वाले सिपाही मोहम्मद नदीम की नमाज जनाजा इंतहाई अकीदत एहतराम के साथ अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में सिविल आर्मी अफसरान की बड़ी तादाद ने शिरकत की और शहीद की अजीम कुर्बानियों पर खराज तहसीन पेश किया। ये यादगार नमाज जनाजा इनकी आबाई गाँव हकीम इमाम दीन में मुनक्किद की गई, जहाँ सोगवारान में शामिल इनके वालिदैन और 2 भाइयों ने अपने अजीज की जुदाई का गम खूब महसूस किया। मोहम्मद नईम की ईद उल फितर के बाद शादी तय थी, जो इनकी कीमती जिंदगी के ख्वाबों में से एक था। इनका जस्तेहाकी गांव पहुंचने पर फूलों की पत्तियां निछावर की गई, जिससे इनकी बेमिसाल कुर्बानियों का इतराफ किया गया। आखिरकार इन्हें पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्दे खाक कर दिया गया, जहां हर एक की आंखों में अश्क और दिल में अकीदत थी। डिप्टी ब्यूरो चीफ डॉक्टर आसिफ अली कादरी की रिपोर्ट के मुताबिक आज हम मौजूद हैं फैसलाबाद के शहर पंसरा में, जहां पर नाजायज़ तजावुज़ात के खिलाफ वज़ीर आला पंजाब मरहम नवाज साहिबा की हदायत पर ग्रैंड ऑपरेशन जारी और सारी है। मज़ीद मालूमात के लिए जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ फैसलाबाद डॉक्टर आसिफ अली कादरी से। जी आसिफ, बताइएगा क्या मालूमात हैं आपके पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं फैसलाबाद के शहर फैसला में, जहाँ पर मरहम नवाज साहिब के अहकामात पर तजावुज़ात के
खिलाफ ऑपरेशन ग्रैंड ऑपरेशन जारी व सारी है। अभी हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि ये मरियम नवाज साहबा के इस ऑपरेशन को कैसे महसूस कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। ये है ना, आगे से रमजान आ रहा है, ये बेचारे किधर जाएं, गरीब लोग हैं बेचारे, इनका नुकसान बहुत हो रहा है, इनका सोचा जाए। जी जैसा भाईजान ने बताया, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके, ये फैसला शहर फैसलाबाद का सबसे बड़ा शहर है, लेकिन नाज़रीन आपको बताते हैं कि मरियम नवाज साहबा के जुल्म को लेकर फैसलाबाद के बहुत ज़्यादा मुतहरक है। इसी चीज़ को देखते हुए ये ग्रैंड ऑपरेशन जारी व सारी है, जहाँ पर जैसा कि इस नौजवान ने बताया है कि कुछ लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात अच्छे हैं और कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं कि जिन गरीब लोगों ने रमज़ान मुबारक इस महीने में इतना ज़्यादा गवर्नमेंट नुकसान उनका कर रही है, इस तलक भी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। कैमरामैन टीम के साथ डिप्टी ब्यूरो चीफ डॉक्टर आसफ अली कादरी, ऑन न्यूज़ मीडिया सेल फैसलाबाद। विहाड़ी डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद रऊफ इरशाद। पंजाब फूड अथॉरिटी का सीवरेज के पानी से उगाई जाने वाली सब्जियों के खिलाफ ऑपरेशन। फूड सेफ्टी टीम की सोनारे वाली गली मेलसी में कई कनाल सब्जियों की चेकिंग। सीवरेज के पानी से काश 24 कनाल सब्जियों को ट्रैक्टर के जरिए खात्मा कर दिया गया। पंजाब फूड अथॉरिटी की खेत से प्लेट तक खुराक की बेहतरी के लिए भरपूर कार्रवाइयाँ जारी हैं। तफसीलात के मुताबिक विहाड़ी की तहसील मेलसी के इलाके सोनारे वाली गली कॉलोनी में सीवरेज के पानी से काश सब्जियों के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। तफसीलात के मुताबिक सीवरेज के जरिए पानी से पालक, धनिया और मूली की सब्जियां काश्त की गई थी। इस मौका पर डीजी फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसम जावेद का कहना था कि सब्जियों और दीगर खुराक की काश्त के लिए ट्यूबवेल का पानी इस्तेमाल किया जाए। आलूदा पानी से उगी सब्जियों में शामिल जहरीले मादे खुराक का हिस्सा बनकर मतअद्दद मूजी बीमारियों का बायस बनते हैं। इनका मजीद कहना था कि इंडस्ट्रियल वेस्ट और सीवरेज के पानी से सिर्फ आउटडोर प्लांट्स, पिस्टन और दीगर डेकोरेशन प्लांट उगाए जा सकते हैं। खेत से प्लेट तक महफूज खुराक की फराहमी पंजाब फूड अथॉरिटी का वलीन फरीजा है। अंजुमन आरतियां गला मंडी के इलेक्शन में हर दिल अजीज शख्सियत चौधरी सदाकत पंसोता दूसरी बार सदर मुंतखब हो गए, जबकि जनरल सेक्रेटरी चौधरी बशीर नंबरदार सीनियर नायब सदर, शाहिद महमूद नायब सदर, हामद खुशी जॉइंट सेक्रेटरी, अब्दुल बासित खजानची, सजाद मकिया सेक्रेटरी, नशोशात अहमद भट्टी शामिल हैं। अंजुमन सहाफ़ियाँ प्रेस क्लब रजिस्टर हरुणाबाद के राय परवेज असगर सहाफ़ी कालम नगार, मजहबी अल्लाह रका बाबर, मियाँ आबद हुसैन, जिया मलक, रशीद अहमद, राउ शाकर खान ने नौ मुंतखब अहदेदारान को मुबारकबाद पेश करते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। शामिल करते मालाकांड से हमारे ब्यूरो चीफ जावेद खान के मुताबिक कुछ दिन पहले जिला मालाकांड थाना कोपर की हदूद में एक घर से 2 मोटरसाइकिलें चोरी हुई थी। इस्लाम में डिप्टी कमिश्नर कमांडेंट मालाकांड लेवीज खामद रहमान की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर डिप्टी कमांडेंट दरगई मोहम्मद शहबाज खान की निगरानी में मुतलका पोस्ट कमांडर ने एक ऑपरेशन शुरू किया और कुछ ही दिनों में 3 चोरों पर मुश्तमिल एक गैंग को गिरफ्तार करके इनके कब्जा से मोटरसाइकिल बरामद कर ली। इस सिलसिला में आज असिस्टेंट कमिश्नर डिप्टी कमांडेंट दरगई मोहम्मद शहबाज खान ने लेवी पोस्ट कोपर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें मुलजमान को मीडिया के सामने पेश किया। इलाके के लोगों ने भी कसीर तादाद में शिरकत करके असिस्टेंट कमिश्नर डिप्टी कमांडेंट दरगई का शुक्रिया अदा किया और हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी कराई। असिस्टेंट कमिश्नर डिप्टी कमांडेंट ने अवाम से खिताब करते हुए कहा कि मालाकांड लेवीज अवाम के जानमाल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर वक्त कोशां हैं। कम वसाइल को अपनी कमजोरी ना समझते हुए दस्तियाब वसाइल को बुरुकार लाकर जराइम पेशा नासर के खिलाफ बसर पे कार हैं। कम टाइम बांधे आई रागल मुंग सर यो इंसिडेंट रिपोर्ट शो पर 16/2/2025 बांधे चिकम कोपर एरिया के नामालूम अफराद 270 बाइक्स और यो 125 बाइक पटकड़ू। थाना कोपर देखिए थाना कोपर की मुंगा FIR नामालूम अफराद खिलाफ रजिस्टर्ड को देखिए मुझे पोस्ट कमांडर तायरुम और खपल टीम सरादी तफ्तीश स्टार्ट को शक पर बुनियाद वाने द मुख्तलिफ कसान रवनीवल आगे की आगे शॉर्टलिस्ट शू आगे शपक कसान आगे शॉर्टलिस्ट शू कसान देखिए आगे डिफरेंट मोबाइल डाटा और डिफरेंट CDRs बांधे दी कारों को
راجہ حمید اختر کی رپورٹ کے مطابق شیرگڑھ کے چک حکیم امام دین میں جعفر ایکسپریس سانحے میں شہید ہونے والے پاک فوج کے سپاہی محمد نعیم کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ شہید کی نماز جنازہ میں پاک فوج اور سول افسران سمیت اہل علاقہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شیرگڑھ کے نواحی علاقے حکیم امام دین محمد جعفر ایکسپریس سانحے میں شہید ہونے والے پاک فوج کے سپاہی محمد نعیم کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ جستحاقی جب آبائی گاؤں پہنچا تو لوگوں نے پھولوں کی پتیاں نچھاور کر کے شہید کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ نماز جنازہ میں پاک فوج اور سول افسران سمیت بڑی تعداد میں اہل علاقہ نے شرکت کی۔ شہید محمد نعیم کے سوگواران میں 2 بھائی اور والدین شامل ہیں، جبکہ ان کی عید الفطر کے بعد شادی طے تھی جو کہ اب حسرت میں بدل گئی۔ شہید کو پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ اس موقع پر پاک فوج کے افسران نے شہید کی قربانی کو خراج تحسین پیش کیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے اون نیوز۔